So, good morning students, myself Professor P.B. Ingde, and today we have to conduct the lecture number 20. Okay, so write down the heading. So heading is lecture number 20 and heading is expansion or compression work. Okay, so this is our today's heading wise. What is the heading? Expansion or compression work. So in last lecture, what is we already start the unit number 2. The name of the unit is heat work, first law of thermodynamics and ideal gas process. So in last lecture, what is we did? We discussed the definition of the thermodynamic work and some simple examples. So we continue with that topic. We have the new title, derivation of a expansion or compression work. Okay, expansion means what is? To change the volume. Okay, volume is increases. अगर पहले मेरे पास में 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, अगर वो बढ़ गया, अगर 20 मीटर क्यूब हो गया, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, लेकिन ये अगर बढ़ के इतना हो गया तो इसको कहते हैं हम कौन सा वर्क बच्चों? एक्सपांशन वर्क. इन एक्सपांशन देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम, मीन्स इंक्रीज द वॉल्यूम. Yes or no? Yes. And in what is in compression? In compression, what is the volume is decrease. Means we have to apply the force and volume is decreases. Means this 20 meter volume change into the 10 meter cube. This is the difference in expansion or compression work. So such type of the expansion and compression work is where is happened. It is happened in piston and cylinder. Okay, we know the piston and cylinder arrangement in our IC engine, 2-stroke engine और 4-stroke engine. तो वहाँ पे क्या चलता रहता बच्चों? एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन चलते रहता. तो ये किस टाइप का डेरिवेशन है, क्या हमारे को मिलता है, यही हमारे को इसमें देखना है. तो चलिए देखते हैं. सी हियर, so let's I draw the diagram of piston and cylinders. So look at here. This is our cylinder. Okay, I draw the simple diagram of the cylinder. So inside this cylinder, what is here, boys? There is a piston. This is a piston will be there. Okay, this is a piston. This is a cylinder. Okay, inside the cylinder and piston, what is there is a gas molecule should be there. There is a gas molecules. Okay, and what is there? There is a boundary. This is the boundary. I draw the boundary. Yes or no? Yes. So all things I have to draw here. This is the boundary. This is the boundary of a gas. Okay, and this is a gas is present in a cylinder. Okay, so this is our piston arrangement. So if you draw this process on PV diagram wise, so let's I draw this diagram on PV. I draw is here. ये PV डायग्राम मैंने यहाँ पे बना ली. अलॉन्ग मेरा x एक्सिस में y एक्सिस में प्रेशर है और x एक्सिस में मेरा वॉल्यूम है. ओके, सो आई ड्रॉ दिस PV डायग्राम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम और दिस पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट्स. अब इसके अंदर क्या है बच्चों? गैस है. अब ये जो गैस है, एक तो ये गैस क्या हो सकता है? एक्सपांड या फिर कॉम्प्रेस. अब यहाँ से यहाँ तक मेरे पास में वॉल्यूम है
V इसका, ओके, लेट्स आई कंसिडर द वॉल्यूम इज V विल बी देयर्स, दिस इज अवर पिस्टन। और प्रेशर कितना होगा बच्चों मेरे पास में P1। तो सपोज मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ PV डायग्राम पे दिस पॉइंट, ओके, दिस इज द पॉइंट नंबर 1। तो प्रेशर कितना हो गया मेरा यहाँ पे P1 हो गया ये गैस का, और वॉल्यूम हो गया बच्चों V1 फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट नंबर 1। अब ये गैस को हीट सप्लाई होगी या वॉट एवर्स, ओके। अब ये गैस अगर एक्सपांड हो गया, द एक्सपांशन ऑफ द गैस, ओके, whenever we supply the heats or whatever the phenomena will be discussed detailed in our further topics। अब यहाँ पे गैस का क्या हो गया, सपोज एक्सपांशन। अब गैस अगर एक्सपांड होगा बच्चों तो ये पिस्टन फिर ऊपर आएगा कि नीचे जाएगा, द पिस्टन विल बी डिस्प्लेस। तो इसको हम दूसरा नाम देते हैं, इट इज डिस्प्लेसमेंट वर्क आल्सो, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वर्क, अनदर नेम इज डिस्प्लेसमेंट वर्क आल्सो। तो यहां से जो पिस्टन है बच्चों, ओके, व्हाट हैपन हियर, द पिस्टन विल बी मूव फ्रॉम दिस पोजीशन टू अनदर न्यू पोजीशन ड्यू टू द एक्सपांशन ऑफ अ गैस। और एक्सपांशन में मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम इंक्रीज होता कि डिक्रीज होता, वॉल्यूम इंक्रीज होता गाइस। सो ड्यू टू द एक्सपांशन द वॉल्यूम इज चेंज, ओके, एंड सपोज दिस विल बी मूव। अब ये ऊपर जब मूव होगा, मतलब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है बच्चों, इसके अंदर ये क्या लगा रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, या फोर्स लगा रहे हैं, ओके। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यफ इज द फोर्स exerted by gas molecules on piston, ओके। ये पिस्टन पे फोर्स लगाएंगे, ओके। पिस्टन पे फोर्स लगाने के बाद में अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये पिस्टन का मैंने एरिया बना लिया यहाँ पे, सपोज दिस इज द एरिया ऑफ पिस्टन, ओके, ये इसका एरिया हो गया, यस और नो, यस। अब ये जो एरिया हो गया, ये पिस्टन का क्या हो गया, फेस, द एरिया ऑफ अ पिस्टन फेस, क्योंकि ये फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है। यहाँ पे मैं नाम देता हूं F, दिस F फोर्स इज एक्सर्ट ऑन दिस पिस्टन, ओके। अब जैसे ही पिस्टन पे फोर्स लगेगा तो ये पिस्टन एक जगह से दूसरा जगह क्या हो जाएगा बच्चों, मूव। तो ये जब मूव हो जाएगा तो इसका लोकेशन मैं निकाल लेता हूँ, सपोज द पिस्टन विल बी चेंज हियर, इसको मैं ऐसे डैश लाइन से बताता हूँ, ओके। द पिस्टन विल बी शिफ्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शंस, यस और नो, यस। अब यहां से तो यहां तक अगर पिस्टन चेंज हो गया तो ये डिस्टेंस मैंने बता दिया, सपोज ये डिस्टेंस ट्रैवल हो गया यहां से यहां तक dx, कैसे बताया बच्चों मैंने, dx से बताया। ये पिस्टन यहां से तो यहां तक क्या हो गया, मूव हो गया, किसके वजह से, फोर्स। किसने लगाया फोर्स, गैस के मॉलिक्यूल ने, क्यों, क्योंकि गैस का क्या हो रहा, एक्सपांशन। अब यहां से ये डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया उसने dx, तो मैं यहां पे लिख देता हूं dx द डिस्टेंस ट्रैवल बाय पिस्टन, ओके। डिस्टेंस ट्रैवल किया या फिर डिस्प्लेसमेंट हो गया, dx को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ओके। यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हो गया, किसका, पिस्टन का। ऐसा पिस्टन था बच्चों, जैसे गैस का मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट हुआ तो ये पिस्टन क्या हो गया, ऐसा ऊपर शिफ्ट हो गया, लिफ्ट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट किसका हो गया, पिस्टन का। डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं हम, द पार्टिकल्स और द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ गिवन डायरेक्शन। अब इसका डायरेक्शन क्या है बच्चों, ऊपर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारी ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, और वेक्टर को क्या रहता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये जब फोर्स एक्ट होगा तो ये कहाँ जा रहा है, ऊपर ही जा रहा, मतलब इसके पास में क्या डायरेक्शन, आड़ा टेढ़ा किधर जा रहा, क्या नहीं, द पिस्टन इज राइजेस इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसके पास में डायरेक्शन है अपवर्ड, और कुछ यहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल करेगा मतलब मैग्नीट्यूड भी है, इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि वेक्टर की क्या डेफिनेशन हमारे पास में, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड एज वेक्टर। और स्केलर किसको कहते हैं, सिर्फ जिसके पास में क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है, उसको कहते हैं हम स्केलर। तो वो स्केलर काय में आता है हमारे डिस्टेंस में,
लेकिन ये dx क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है, नॉट अ डिस्टेंस, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको क्या वर्ड बनाया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट लिखा, इसलिए इसको दूसरा क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्क भी कहते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे गाइज, अब जैसे ही पिस्टन एक्सपांड हो गया तो वॉल्यूम इसका बढ़ रहा कि कम हो रहा, बढ़ रहा, तो फिर पॉइंट हमारे को ऐसा मिल गया और ग्राफ भी हमारे को इस तरह से मिल गया। द ग्राफ इज गेटिंग लाइक दैट, ये हमारा 2 नंबर का पॉइंट, वॉल्यूम इंक्रीजेस V2, प्रेशर इंक्रीजेस हाउ मच, P2। ओके, इसके अंदर अगर स्मॉल वॉल्यूम हम अगर कंसिडर करेंगे, ये अगर इसके अंदर हम स्मॉल वॉल्यूम कंसिडर करेंगे तो ये क्या हमारा एकदम स्मॉल वॉल्यूम आ जाएगा। इसको बता सकते हैं हम कैसे बच्चों, डीवी से, ये सर नो, यस, ये स्मॉल वॉल्यूम अगर मैंने ऐसा ग्राफ बता दिया तो इसके अंदर, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या है मेरा वॉल्यूम, प्रेशर हम इधर बता सकते हैं स्मॉल प्रेशर डीपी। अब फोर्स पता है हमारे को, एरिया भी पता है और डीएक्स भी पता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पिस्टन, ये क्या है, फेस ऑफ अ पिस्टन, और यह क्या है, फोर्स लगा रहा कौन, गैस मॉलिक्यूल, किसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर। कौन से वर्क में पढ़ रहे हैं हम, एक्सपांशन कंसीडर हमने कर लिया। तुम कौन सा भी ले सकते हैं, एक्सपांशन लो या फिर कंप्रेशन, यूर ओन चॉइस। तो अब देखिए बॉयज, यहाँ पे V1 इज इनिशियल वॉल्यूम, ओके, और V2 है हमारा फाइनल वॉल्यूम, राइट, यस। तो अभी मुझे बताइए बच्चों, प्रेशर की क्या डेफिनेशन रहती, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस मॉलिक्यूल ऑन अ पिस्टन। तो प्रेशर का क्या डेफिनेशन है, फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि प्रेशर का यूनिट क्या रहता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या है बच्चों, न्यूटन, एरिया का क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर कितना आ गया हमारे पास में, F अपॉन A। तो फिर फोर्स कितना हो गया जो पिस्टन पे लग रहा है, F इज इक्वल टू P इंटू A। इसको बनाया मैंने इक्वेशन नंबर 1। तो इतना फोर्स पिस्टन पे लग रहा, कौन लगा रहा, गैस मॉलिक्यूल्स, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब मुझे बताइए बच्चों, वर्क डन की डेफिनेशन क्या है, बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन क्या था हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यस और नो, यस, ये हमारा डेफिनेशन है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स को मैंने बता दिया F से, और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा हो गया बच्चों, शो dx, क्योंकि पिस्टन थोड़ा सा मूव हो गया, ऐसा ज्यादा मूव हो रहा क्या नहीं, थोड़ा सा मैंने कंसिडर किया, द पिस्टन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इट इज शो बाय द लेटर dx बोले तो स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल। अगर बिग डिस्टेंस जाता था तो फिर क्या आता था, x आता था गाइस, इसलिए dx साइकिल हो गया एकदम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिखता हूँ मैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो वर्क डन, अब वर्क डन हमारे को मिलने के बाद में, अब ये जो स्मॉल वर्क डन है बच्चों, तो इसको मैं बताऊंगा डेल्टा W से, क्योंकि हम पढ़े हैं, इसको शो करूंगा मैं डेल W से, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है हमारा, पाथ फंक्शन है, पॉइंट है क्या नहीं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दीज आर द पॉइंट फंक्शन, इसलिए उसको हम dp और dt लिखते थे। लेकिन ये क्या है हमारा पाथ फंक्शन, तो ये कैसा रहता था, इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, तो इसको हम कैसे लिखते थे, डेल्टा W। तो डेल्टा W से लिखा मैंने F इंटू dx। क्यों डेल्टा W आ गया, क्योंकि स्मॉल वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया, इसलिए यहाँ पे बच्चों आ गया डेल्टा W। ओके गाइस, ओके। सो व्हाट इज द चेंज हियर नाउ, अब ये फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, सो ये बन गया फिर डेल W, F इज रिप्लेस बाय P इंटू A इंटू dx। इसको बना दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 गाइस। ओके, तो ये होगा हमारा अभी स्मॉल वर्क डन, जो पिस्टन यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ, डेल W इज इक्वल टू P इंटू A इंटू dx। तो अब यहाँ पे देखिए गाइस, दिस इज द एरिया एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब पिस्टन का जो एरिया है वो तो चेंज ही नहीं होगा, वो स्मॉल जाओ या फिर बिग, ये तो एरिया फिक्स रहने वाला है। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, पहले यहाँ तक है
यहाँ से सिर्फ यहाँ तक हुआ इसलिए मैंने dx, यहाँ तक आ रहता तो क्या रहता था x, तो यहाँ से यहाँ तक हुआ इसलिए इसका डिस्टेंस हमने कितना बताया dx। एरिया में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं, एरिया इट शुड बी रिमेन्स कॉन्स्टेंट्स। तो अब यहाँ पे देखिए वी नो एरिया का यूनिट क्या रहता है मीटर स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो फिर ये आ गया हमारे पास में चेंज इन वॉल्यूम dv, ये लिखा मैंने a इंटू डी एक्स, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मतलब क्या हो गया बच्चों, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने, मीटर क्यूब। और वॉल्यूम का यूनिट क्या रहता हमेशा मीटर क्यूब। अब ये वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा तो देखिए फिर क्या आएगा, डेल डब्ल्यू पी इंटू डी वी, ये बना इक्वेशन नंबर 3 गाइज। ओके, अब ये जो डेल डब्ल्यू है ये निकाला मैंने काय के लिए, एकदम स्मॉल वर्क डन निकाला है मैंने। अब मुझे टोटल वर्क डन चाहिए। ओके, आई वॉन्ट अ टोटल वर्क डन, फॉर अ टोटल वर्क डन, और टोटल वर्क डन ओके बाय द सिस्टम, बाय द पिस्टन। ओके, अब टोटल वर्क डन होना बच्चों, तो टोटल वर्क डन अगर होना हमारी को पूरे साइकिल के लिए, एक्सपांशन है तो एरो ध्यान में रखिए, हाँ एरो ऐसा आएगा साइकिल पे, एक्सपांशन, कॉम्प्रेशन होगा तो एरो ऊपर, ये काय के लिए एरो नीचे, एक्सपांशन कॉम्प्रेशन रहता था तो एरो ऊपर। अब पूरा टोटल वर्क डन निकालना है पिस्टन का, और कंप्लीट वर्क डन बाय द पिस्टन, तो फिर टोटल जब आता है बच्चों तो फिर क्या आता है हमारे पास में, राइट, इंट्रीगेशंस। तो इक्वेशन 3 को क्या करेंगे हम, इंट्रीगेट करेंगे। तो इक्वेशन 3 इंट्रीगेटेड, तो फिर क्या आएगा 1 to 2 डेल डब्ल्यू, यहाँ पे भी लिमिट्स आएंगी पी डी वी। अब चेंज क्या आ रहा है बच्चों, वॉल्यूम चेंज हो गया V1 से लेके तो V2 तक, इसलिए इसकी लिमिट्स आ गए मेरे पास V1 एंड V2। तो वर्क डन मिला इसका मुझे, वर्क डन 1-2, यहाँ पे प्रेशर क्या है बच्चों, कांस्टेंट प्रेशर बाहर आ गया, V1 एंड V2 dV। ओके, इसको मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व करके बता दूँ आपको। सो V1 V2 P बाहर निकल गया dV, तो अभी वी नो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या रहता है हर बार x, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर P V2 V आएगा, लिमिट्स V2 अपॉन V1 गाइस, तो फिर यहाँ पे क्या आ गया, फिर ये P यहाँ पे आ जाएगा V2 माइनस V1। तो फिर वर्क डन क्या मिला हमारे को, वर्क डन इज P V2 माइनस V1। वर्क डन का यूनिट क्या रहता है बच्चों, जूल। सो यू शुड नो दिस फार्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू P V2 माइनस V1। दिस इज फॉर विच सिचुएशन, एक्सपांशन वर्क, क्योंकि एक्सपांशन में हमारा वॉल्यूम क्या रहेगा ज्यादा और V1 क्या रहेगा कम। तो फिर एक्सपांशन वर्क जो है बच्चों वो पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, बताओ मुझे। एक्सपांशन वर्क इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन मैं अगर वो कॉम्प्रेशन वर्क करूंगा तो कॉम्प्रेशन वर्क कैसा आएगा मेरे पास में, निगेटिव आएगा। तो एक्सपांशन वर्क इज पॉजिटिव। ओके, ये फार्मूले से आप पता कर सकते हैं ना, अगर V2 10 है तो 10 माइनस 5 आएगा, लेकिन अगर एक्सपांशन है, अगर कॉम्प्रेशन है तो फिर क्या आएगा, फिर लिमिट्स V1 माइनस V2 आएंगे, तब ये क्या आएंगे, निगेटिव आएगा। तो निगेटिव इज कॉम्प्रेशन वर्क, कॉम्प्रेशन वर्क। और एक्सपांशन वर्क क्या है हमारा, हमेशा पॉजिटिव। ये ध्यान में रखना, ये दो चीजें, क्योंकि जब कॉम्प्रेशन वर्क रहेगा तब क्या फार्मूला आएगा, V1 माइनस V2। ओके, और V1 क्या रहता कम, V2 क्या रहता ज्यादा। जब ये पिस्टन को हम दबाएंगे नीचे, उसको क्या कहेंगे हम, कॉम्प्रेशन। तो वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं हम, डिक्रीज कर रहे हैं बच्चों। तो फिर लिमिट्स क्या आएंगी हमारी, यहाँ पे V1 टू V2 आएंगी, क्या नहीं, क्या आएंगी V2 टू V1 कॉम्प्रेशन के लिए, ये सिंपल है। सो V2 टू V1 आएगा तो यहाँ पे आएगा फिर V1 माइनस
V2। ये डेरिवेशन मैंने काय के लिए बनाया है, एक्सपांशन वर्क के लिए। डायग्राम से भी आपके समझ में आ गया है, इससे भी और इससे भी गाइस। ओके बॉयज, सो दिस इज द एंड ऑफ डेरिवेशंस एंड यू शुड नो दिस 2 पॉइंट्स। तो ये पेपर में पूछा जाता है कभी कभी, एक्सप्लेन द एक्सपांशन वर्क और कॉम्प्रेशन वर्क, तो यू मे राइट डाउन लाइक दैट्स। ओके, और इसके ऊपर हमारे को न्यूमेरिकल की बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक और डेफिनेशन आपको पढ़ाता हूँ। ओके, अब एक डेफिनेशन पढ़ेंगे हम यहाँ पे, पावर की डेफिनेशन। पावर, सो पावर की क्या डेफिनेशन है बच्चों, देखिए। पावर मीन्स द रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। ओके, या फिर और इट इज अ रेशो ऑफ वर्क डन एंड टाइम is called as power. It is a ratio of work done per unit time is called as power. एकदम सिंपल डेफिनेशन है, 10वीं 11वीं में आप इसको पढ़ चुके हैं। तो फिर क्या फार्मूला बनेगा फिर पावर का, देखिए। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन तो हमने निकाला है। ओके, वर्क डन का यूनिट क्या रहता है हमारे पास में, ये हमारे पास में वर्क डन है P माइनस V1 अपॉन टाइम T से शो किया जाता है। अब यहाँ पे वर्क डन का यूनिट क्या हो गया, जूल। तो टाइम का में आएगा बच्चों सेकंड, तो फिर पावर का यूनिट क्या आ गया फिर, जूल पर सेकंड इज नथिंग बट द वैट। ओके, सो ये सिंपल डेफिनेशन ध्यान में रखना। ये इसके हमारे को अगले जो टॉपिक पढ़ेंगे नॉन फ्लो प्रोसेस, उसमें बहुत काम है इसका, और इसके ऊपर हमारे पास मतलब न्यूमेरिकल भी हमारे को सॉल्व करना है बच्चों। सो पावर का यूनिट आ गया हमारे पास में वैट। ओके, सो दिस इज अवर टुडेज टॉपिक। I have to stop here. Okay, in our next lecture we have to discuss the concept of a heat now. Okay, so then after the concept of the heat, then we write down the difference between the heat and work. Okay, and then we start the numerical on this topic, heat and work. And then also the one more point also there, path function and point functions. So this will be discussed later. Today we have to prove only the derivation of expansion work, then definition of the powers, this piston cylinder diagram, and this guys PV diagram. Okay, so I stop here. If you like my videos, so please share my videos with your friends and your another college friends. Okay, and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. So stay at home, stay safe. Thank you very much.